बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y या इन द वेरिएबल x को डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चन मज़ीद इस पे हम हल करते हैं। स्क्रीन में यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी y यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, the highest exponent of the variable y is 1. Moreover, the degree of the derivative is also 1. There is no product term of the dependent variable y with its derivative, so this differential equation is linear in y. Linear differential equation is always non-exact. To make it exact one, we need integrating factor. This differential equation is similar to dy by dx plus pxy is equal to q of x. Here p is 3 and q of x is equal to e power 2x. So integrating factor is equal to e power integral px dx. Putting the value of p is equal to 3. So here is 3 is constant. Integral dx is equal to x. So e power 3x is the integrating factor. Now we have to use this integrating factor. This integrating factor will make this non-exact differential equation as exact one. So multiplying both sides by the integrating factor, here the multiplication is, this is left side and we have to multiply it by the integrating factor e power 3x. So here is the multiplication e power 3x and here is also e power 3x, and this is the right side whose multiplication is here. Now here we have two terms, and this summation of two terms is actually the product rule of the derivative of y e power 3x. This y is here, this is y which is always written here, and e power 3x integrating factor, this integrating factor is always written here. So here the product rule, the derivative of this product is equal to first function derivative of second plus second derivative of first. तो यहाँ पे जो टू टर्म्स है ये असल में इसी फंक्शन का प्रोडक्ट रूल है और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। अब इसी को हम हल कर सकते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं या इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है y e पावर 3x है और e पावर 5x का इंटीग्रल है e पावर 5x और 5x का डेरिवेटिव है 5। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e पावर 3x, तो यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे आएगा e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 e पावर 3x। तो 5x और e पावर 3x का सिम्प्लिफिकेशन हमें मिलेगा। यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन क्या है, 5x से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x आएगा और ये वाला जो डिवाइजर है ये ऊपर जाकर माइनस बनेगा। अब y इज इक्वल टू 1/5 e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 3x है। दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन। इसी y की वजह से here the exponent of the variable is 3. The exponent of the variable is more than 1, so it is non-linear due to y cube. Moreover, there is product term of the dependent variable y with its derivative. So on account of these two properties, this differential equation cannot be expressed as a linear in y. So we will change the role of y and x and we will make it linear in x. In this form it is not linear in y. Multiplying by dx over dy, multiplying this equation by dx over dy, so here dy by dx will be cancelled and here this y will become y dx over dy. Now writing this differential equation in this way, this is the differential equation, multiplying this equation by y, so here we have multiplication. Now if we look to this differential equation is linear in x. यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है 1 है,
इसके अलावा x का जो डेरिवेटिव है इसके हाईएस्ट पावर 1 है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dx और dy का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये लीनियर इन x है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाई y ये वैल्यू ऑफ py है और ये वैल्यू ऑफ qy है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इसी p, दिस इज वैल्यू ऑफ p। So putting the value, this 2 is constant, integral 1 over y is equal to log y. This 2 by the log property will be here. This log and e will cancel each other. We will get y square. This y square is the integrating factor. So the general solution here, this is the linear differential equation in x. This x is dependent variable. We will take this x here multiplied by integrating factor is equal to integral of q. This is q multiplied by integrating factor dy. This dy will be written here. If here is x, here will be dy. Putting the value here, we will get y power 4. So integral of y by power 4 is equal to increase the power divided by the power, and this is the simplification. So this is the general solution of the this differential equation. This differential equation is not expressible as linear in y, but we have expressed it as linear in x, and finally we reach to the general solution. हम हल करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये तो ना, दिस क्वेश्चन इज नाइदर वेरिएबल सेपरेबल, moreover it is non-homogeneous. So comparing, if we compare this equation, comparing the given equation with standard linear differential equation, so this is the standard form of the linear differential equation in the variable y. This is the standard form of linear differential equation in y. So we can write this differential equation similar to this one. So this is prom 1 we can write. This is the differential equation linear in y. It is linear differential equation in y. This is value of p, and this is value of q. Now integrating factor is equal to e raised to integral p. तो value of p है 2 divided by x, 2 constant है, इंटीग्रल 1 ओवर x dx इक्वल log x। इसी 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसी को हम फार्मूले में पुट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके अलावा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर इन y है, तो इसी y को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लगाते हैं और इसी dx को यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं और q की वैल्यू, q ये फंक्शन जो है ये q है, यहाँ पे हमने लिखा है कि ये फंक्शन q है। तो यहाँ पे जब वैल्यू हमने पुट किए, सिंप्लीफिकेशन है, x स्क्वायर और x आपस में सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, इसी को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसी को हम सेकंड लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ साइन है माइनस कास, x का डिफरेंशिएशन है 1 और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। अब माइनस और माइनस प्लस आ गया, इंटीग्रल ऑफ कास इक्वल टू साइन, तो y x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब इसी को डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर, तो यहाँ पे y आएगा, ये x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे फार्मूला है, साइन का डेरिवेटिव काज है और काज का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल साइन है। इस तरह माइनस काज का डेरिवेटिव साइन है और साइन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल माइनस काज है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने हल किया। अब हम आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देख ले तो इसको हम एज लीनियर इन वाई लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन के साथ हमने गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करना है। तो अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, दस वन बिकम्स
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब 2x प्लस 1 को अगर हम x पे डिवाइड करें तो ये आ गया। अब फाइनली ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो क्वेश्चन था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो p की वैल्यू, दिस इज़ वैल्यू ऑफ p, दिस इज वैल्यू ऑफ q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट किए। इंटीग्रल 2 dx बराबर है 2x, इंटीग्रल 1 ओवर x बराबर है log x। अब e पावर 2x e पावर log x। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो x आएगा यहाँ पे और e पावर 2x आएगा। ये वाला हमारे पास क्या है, दिस इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने फार्मूले में पुट करना है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज़ लीनियर इन y, तो यहाँ पे हमने y लिखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है, यहाँ भी आ गई है, और वैल्यू ऑफ q यहाँ पे है। अब यहाँ पे e पावर माइनस 2x और e पावर 2x सिंप्लीफाई होगा तो e पावर 0 आएगा, e पावर 0 को 1, तो यहाँ पे आएगा। बल्कि अगर इसको हम देखें तो ये वाला फंक्शन और ये वाला कैंसिल होगा। इंटीग्रल x, तो इंटीग्रल x है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। x इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया yx e पावर 2 इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा। अब इसी को हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Using distributive property, this factor will be shifted inside, so this will be the general solution. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी को हमने लिखना है इसी हालत में। This is linear in y, dividing this equation, dividing both sides of this equation by x log x, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये क्या है, लीनियर एन वाई, दिस इज़ लीनियर एन वाई। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर एन वाई का, तो इसी इक्वेशन को हमने चेंज किया एज लीनियर एन वाई। अब यहाँ पे p, दिस वन इज़ वैल्यू ऑफ p, दिस वन इज़ वैल्यू ऑफ q। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला है इसको यूज़ करना है। इंटीग्रल 1 ओवर log x 1 ओवर x dx, log ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x बराबर है 1 ओवर log x इंटू 1 ओवर x, और 1 ओवर log x 1 ओवर x का एंटी डेरिवेटिव है log ऑफ log x। तो इसी यहाँ पे जो इंटीग्रल है इसका इंटीग्रेशन ये वाला है। अब ये आपस में कैंसिल होंगे, दीज टू विल कैंसिल ईच अदर, तो log x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला है, तो फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। अब ये है log x, तो ये यहाँ आ गया, 1 ओवर x यहाँ पे आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे एक फंक्शन हो और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो इंटीग्रल ऑफ सच प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इंक्रीज द पावर ऑफ f एंड डिवाइड बाय द पावर। तो यहाँ log है और उसका डेरिवेटिव है, तो इसी log का पावर हम इंक्रीज करेंगे, उसी पे डिवाइड करेंगे। अब y log x इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 2 कैंसिल करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह लिखें, अब ये वाला ड्यू टू y क्यूब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर एन y। इसी इक्वेशन में y क्यूब है, इस वजह से इसको हम लीनियर इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y नहीं लिख सकते। इसके अलावा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y और इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y हम नहीं लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह लिखें और फिर इसको हम इन्वर्ट करें तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वाला
अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, विच इज़ ऑफ दिस फॉर्म। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये दोनों एक जैसे हैं। तो p, यहाँ जो p है, यहाँ p की वैल्यू -1 और y है, यहाँ q है जिसकी वैल्यू 2y² है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है, पुटिंग द वैल्यू, ये माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रल 1 और y log y है। अब इसी माइनस को हम y को ले आते हैं log, और ये आपस में कैंसिल होगा, तो 1 और y हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसी x को हमने यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट किया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, क्यों है जब वो वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज़, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किए हैं। 2 कांस्टेंट है, y यहाँ पे y² डिवाइड बाई y हमें देगा y, इंटीग्रल y² डिवाइड बाई 2। अब ये 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो y² प्लस c है, और यहाँ है x डिवाइड बाई y y² प्लस c, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहे तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब वो 1 और cos हम सीक्वेंस पे लिखेंगे, साइन और cos को हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ p, दिस इज़ p, तो p की वैल्यू जब हमने पुट किया, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फार्मूले में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट किया। अब यहाँ पे e पावर 10 यहाँ पे लिखा, साइन डिवाइड बाई काज यहाँ पे लिखा, और cos 1 और cos स्क्वायर को यहाँ पे लिखा। अब वो e पावर 10 अपनी जगह पे है, साइन और cos टेंजेंट आ गया, 1 और cos सीकेंट स्क्वायर आ गया। अब वो टेंजेंट, इसी टेंजेंट को हम u लेते हैं, लेट अस टेक टेंजेंट इज इक्वल टू u, टेकिंग डिफरेंशियल, तो सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू du। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे है y e पावर टेंजेंट, तो ये अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, टेंजेंट की जगह यहाँ पे u करना है, इसी टेंजेंट को u लिखना है, और सीकेंट स्क्वायर x dx को du लिखना है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ e, तो ये आ गया, u का डेरिवेटिव 1 आ गया, और e पावर u का इंटीग्रेशन e पावर u है। अब वो e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u है। u, अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू है टेंजेंट, यहाँ भी u की वैल्यू टेंजेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किए। अब यहाँ पे जो 2 टर्म्स है वहाँ यहाँ पे हमने कॉमन लिया, e पावर 10x। नाउ वी हैव एन इक्वेशन y e पावर 10x इक्वल टू e पावर 10x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई e पावर 10x, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया।